Bonjour Adi, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Et vous? Je vais bien aussi, merci beaucoup. Alors, dis-moi, I wanted to ask you something in past tense, but I haven't taught you past tense. Tu t'es bien amusé? Tu t'es bien amusé? Oui. Oui, the question is, tu t'es bien amusé? So, Non. did you enjoy well? Hmm. Oui. So, you say oui. Je me Bien. suis bien amusé. So, I enjoyed well. Très bien. Et tu as visité quelle ville? Tu as visité. Tu as visité quelle ville? Je visite Udaipur. Ah, j'ai visité Udaipur. D'accord. Très bien. J'ai visité Udaipur. Voilà, j'ai visité Udaipur. Très bien. Ok, on va continuer. Oui, voilà, je vois Tarun. Bonjour Tarun, comment ça va? Okay, so we'll start with our text because if you remember, this was a text we were doing the other day. Uh, Okay, so this is the text we'll read, and I see you have sent your work. Adi will discuss that as well. So I'll just quickly greet everyone. Je vois Ravinder. Bonjour Ravinder, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Et vous? Je vais bien aussi, merci beaucoup. Alors Ravinder, tu as fini ce texte? Tu as fini ce texte? Pardon, n'est fini pas test. Ce n'est pas fini. J'ai, ça n'est pas fini, ça n'est It's pas not finished. fini. Ce n'est pas fini. Because I haven't taught you past tense, so you don't. I don't know if you know how to say I have not yet finished. So we'll not go into that. We'll say ce n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Okay. So, but did we already read that on a déjà lu in the last class? We read this, the text. Yes. Okay. Oui, Chaliए. oui, oui. So we would not spend time on that. We'll just quickly jump on to the following thing then. Okay. So today we are going to work on the prepositions, right? So the other day, if you remember, I started with this little thing. I taught you people qui est, c'est qui. Qu'est-ce que c'est? What does that mean, Tarun? Qui est? Qui est? Uh, what is who is this? Who is this? Qui est or c'est qui is for a human being. If I showed you a picture or if I pointed to someone else and I asked you, Ravinder, c'est qui? Qui est? So you will give me the identity of this person. C'est mon frère. C'est C'est ma mon frère. sœur. C'est mon ami. C'est un acteur. C'est une actrice. C'est le médecin. You know, whatever whoever the person is. And if I were to ask you, what is this, Adi? How do I ask this question? What is this? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que What is c'est? this? What is it? So, if I were to show you this, Ravindra, I would ask you, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? What C'est answer will you ma get? stylo. C'est C'est un ma stylo. stylo. C'est un stylo. What does that mean, Ravinder? C'est un stylo? It's a pen. It's a pen. Perfect. चलिए, तो ये हमारे पास बेसिक क्वेश्चन थे. यह कौन है और यह क्या है के लिए से की या फिर या रविंद्र टेल मी. ओके नहीं, मैं सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पूछ रही थी से की. ये देखने में तो बहुत बड़े लग रहे हैं ना, पर ये सिर्फ से की हो जाता है. आई गेट कंफ्यूज. नहीं, से ये वाला की. से की है. अगर आप देख पा रहे हैं अच्छे से स्क्रीन पे, तो से की है. ये वाला है से की और ये वाला है की एस. से की एस, राइट. और ये वाला जो क्वेश्चन है रविंद्र, जो बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, जो अभी आदि ने पढ़ के बताया, किस किससे, इसका एक और शॉर्ट फॉर्म में तरुण, वो है सेक्वा. सेक्वा. हाँ. यह क्या है? सेक्वा. आप इसको भी याद कर लीजिए. सेक्वा, राइट. सेक्वा मींस व्हाट इज दिस. और क्वा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आदि. आप किसी इंसान के लिए नहीं बोल सकते सेक्वा, राइट. दैट कैन नॉट वर्क, राइट. सेकी, सेक्वा, अदरवाइज कीएस, किसके से. किसके से.
KS. Okay. KS. Now we'll move ahead with the Yes. prepositions. See, preposition is something that you don't have to mug up. Let it, be understood as and when it is coming on your way, and you meet it in the texts. So the first one is a with an accent. ये आपने already देखा हुआ है, आपको याद होगा Jabit à Jaipur, Jabit à Delhi, right? Yeah. Jabit à Toulouse, Jabit à Toulouse. Wow. So what does that A stand for, Ravinder? I live in. Yeah. So this A means In. yeah. So this In A this can context mean, is in. very good. It can mean in, it can mean at, it can mean to. कुछ भी इसका मीनिंग हो सकता है, डिपेंड करेगा इंग्लिश में आप इसको क्या कन्वर्ट करते हैं. सो ये एक चैलेंज है. दिस इज अ चैलेंज दैट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ यू ट्रांसलेट द सेंटेंस इन इंग्लिश. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद. सो दिस आर preposition becomes in when you say j'habite à Toulouse, which means I live in Toulouse, right? If someone stays in Jaipur, this person would say j'habite à Jaipur, j'habite à Delhi, and there a is in. So I can see Vaibhav. Bonjour Vaibhav, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Et vous? Je vais bien aussi, merci. Aujourd'hui, nous apprenons le thème, the theme, les prépositions. Les prépositions. So you understand what prepositions are? These are the words that show the position. In, above, below, beside, right, around. ये सारे जो words होते हैं, ये हमारे prepositions हैं. हम जितने ज़्यादा Yes. prepositions करने का try करेंगे maximum का, but you don't have to mug them up. Let them come naturally to you with passage of time. The text that you would read or the writing section that you would do for yourself, you would be requiring, and that's how you will learn them. So the first one is Okay. a, which can in English mean as to or at or in. Okay, Tarun, tu peux lire? Tu peux lire cette phrase? What does that question mean, Tarun? That I'm asking you. Tarun, tu peux lire cette phrase? What does that question mean? Lead is to study, to read. To read. Yes. What's my question? Tu peux say, lire cette phrase? you read it. You read it. What is this per, Tarun? Okay. So what does that Can question you mean? can you read? Can you read what is written? Yeah. No, what is Can written you will be read? very, very specific. Can you read this? Phrase. Can you Phrase. read this phrase? Yeah. Yeah, so can you read this sentence? So in English, Yeah, can you read the phrase? Yeah, that's good. voila. So in French, a sentence is called phrase. 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 In English, when in English you say a phrase, it is a structured fixed line. So इंग्लिश में Yeah. इसको फ्रेज नहीं बोलना, हमें इंग्लिश में इसको सेंटेंस बोलना है. और फ्रेंच में एक सेंटेंस जो एक वाक्य होता है उसको बोलते हैं फ्राज, यून फ्राज, राइट? Phrase. सो Phrase. Phrase. फ्राज, 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 Phrase. फ्राज, Phrase. राइट? वही सेम स्पेलिंग है फ्रेज जैसी इंग्लिश वाली, बट इंग्लिश में फ्रेज कुछ और सेंस में आता है, लेकिन इंग्लिश में इसका मतलब होगा सेंटेंस. कैन यू रीड द सेंटेंस? सो tu peux lire cette phrase, Tarun? How do you say yes, I can read this sentence? बोल के बताइए. Je lire ces phrases. Yeah, so take help of the complete question, Tarun, and say oui, je peux lire cette phrase. Oui, je peux lire ces phrases. Okay. Je peux lire cette phrase, which means I can read this sentence. चलिए, so पढ़िए, vas-y. Je veux l'école. Je vais à l'école. Je vais à Je vais l'école. l'école. What does that Je mean? Je vais vais à là. l'école. Yeah, I go to school. Yes, I like go to l'école is school. school. Yeah. So yeah, so over here, what did we see, Vaibhav? The a becomes to, right? You don't say in. So what I'm trying to say is that Yeah. you've already understood that the whole sentence will depend in English as to what you want to say. Okay, so je vais à l'école, right? Yeah. I am going to, sir, I am going to school भी यही लिखेंगे, right? I'm going to the school. French में हम à l'école को use करें. À école कभी नहीं बोलेंगे. I'm going to the school. I'm going to the school. À l'école. You'll have to use a definite article.
You will I never am say in go- French, je vais à école. You will never say that. no, I go to school or I am going to school का Okay. same होगा, right? अच्छा अच्छा, I'm go, yeah, I go to the school और I am going to the school एक ही बात है. दोनों ठीक है, राइट? तो दोनों का एक ही मतलब है फ्रेंच में. वापस से उस पॉइंट पे रीइटरेट कर सकते हैं कि je mange, I eat and I am eating है. उसी प्रकार से वैभव je vais, I go या I am going. मैं जाता हूँ, कोई स्टूडेंट कहेगा मैं every day in the morning I go to the school at 7:30. So je vais à l'école chaque jour à 7h30 du matin. Right? You understand that? और इस समय Yes. वो बच्चा अगर जा रहा है तो वो बच्चा कहेगा je vais à l'école. Tu vas où? तुम कहाँ जा रहे हो? Tu vas où? Je vais à l'école. I'm going to the school. Right? So it means the same. देखो Okay. वैसे Perfect. There is another preposition the. The का मतलब दो होता है of या Easy. from. या आप बताइए, वैभव इस सेंटेंस को पढ़िए. le livre de Marie, Which means? What does that mean? the book of Marie. Absolutely, the book of Marie, which in English becomes Marie's book. Mary's book, right? So in French Yes. you don't have Mary's book, you have the book of Marie. So आपको हमेशा द लगा के बात बोलनी पड़ेगी, the book of Mary. So द का मतलब ऑफ होता है और फ्रॉम भी होता है. फ्रॉम कैसे हो सकता है? जैसे je viens de, किसी व्यक्ति ने अगर ये बोला है रविंदर, je viens de Delhi, what does that mean? Je viens de Delhi. I'm from Delhi. Exactly, I am from Delhi basically है I come from Delhi, right? जो वनीर वर्ब है वो Okay. है to come from, लेकिन जो आपने कहा बिल्कुल सही है, अंग्रेजी में यही बोलते हैं where do you belong to? Oh, I am from Delhi, I come from Delhi, I hail from Delhi. So je viens de Delhi. So ये the of की जगह आप From from है. की तरह भी यूज कर सकेंगे. So it depends as to what you want to say. Place हो गया तो और ये from, कोई व्यक्ति है तो of. Yeah, रविंदर. so ये जो via है it means come. Yeah, ये Via. वनीर वर्ब से आया है, VENIR. Need to come. Okay. आपको याद है हमने एक आपको टेंस सिखाया था, पासे रेसेंट, रीसेंट पास्ट, याद आ रहा है? आपको ताजा कोई चीज करी हाँ हुई जी. थी हमने, याद आ रहा है? Near future. Near future. नियर फ्यूचर तो जाने का था, आले का. एक ताजा कोई चीज करके आए थे. यू हैव टू टेल मी इफ यू हैव डन इट और नॉट. आई माइट मिक्स इट अप. किया है हमने ऐसा कोई टेंस जो रीसेंट पास्ट बताता है, ताजा नहीं, कोई चीज करके आए थे? future. Near future is what I remember, हाँ, but तो ये नियर वाला फ्यूचर पढ़ाया था, ठीक है. आपको कुछ फ्यूचर पासे रेस्टोरेंट जैसा कुछ सुनाई दिया है कभी? पासे रेस्टोरेंट No. नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं. पासे रेसो फिर मैं आपको करवाऊंगा. तो वहां पे हम देखेंगे इस वाले वनीर वर्ब को, पासे रेसो तब देखेंगे. बट फिलहाल आप वनीर को याद कर लीजिए. इसका मतलब होता है टू कम, आना, राइट? To सो come. आई कम फ्रॉम Okay. दिल्ली. आगे हम देखते हैं ये डॉन. yeah. DANS डॉन. डॉन का मतलब होता है इन या इनसाइड. In or inside. आदि इसको पढ़ो चुपली. Il est dans la maison. Il est dans la maison. What does that mean, Adi? He is in the house. He is in the house. Perfect. So dans हो गया इन. आप उस चीज के अंदर अगर हैं तो आप बोलेंगे dans la maison. In or inside. EN का मतलब इन भी होता है और बाय भी होता है. इन कब यूज करना है आपको? जब आप महीनों की बात करेंगे, मौसम की बात करेंगे, आप कंट्रीज की बात करेंगे या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे. उदाहरण के लिए वैभव आप पढ़िए. Nous voyageons en avion. Nous voyageons en avion. What does that mean? I travel by plane. Yeah, we travel Okay, by we plane. sorry. We We travel by travel by plane. plane, right? So अब आप इसको इंग्लिश में अगर ये बोलना चाहें कि हम तो ये बोलना चाह रहे हैं we travel in plane, कोई दिक्कत नहीं है. पर अंग्रेजी में आप अपनी अंग्रेजी दुरुस्त रखिएगा कि आपको बाय बोलना है, तब इन नहीं. बट फ्रेंच ने बड़ा क्लियर कर रखा है कि हम en यूज करेंगे जब हम उस जो वाहन है, उस ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, उसके अंदर होंगे तो हम en यूज करेंगे. आप मेट्रो में हैं, आप कार में हैं, आप बस में हैं, इन विच यू आर टोटली इनटू इट, सो यू ऑलवेज यूज ऑन. या फिर महीने जो होते हैं उसके पहले en janvier. Okay. मौसम Don't होता show है me नहीं करेंगे. On janvier. गर्मी सर्दियों En में en janvier. hiver. en hiver. en hiver. On hiver. देश की In बात winter. करें तो फ्रांस में en France. En français. अगर फेमिनाइन देश है, तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें en लगाना पड़ेगा. जैसे भारत भी फेमिनाइन देश है तो हम बोलते हैं en Inde.
ये आप ध्यान रखिएगा। सॉरी Okay. फिर से बताएंगे सर Yeah. फीमेल है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, मैंने कहा है कि जो देश अगर फेमिनाइन है तो उसके पहले ईएन लगेगा वैभव। अगर देश मैस्कुलिन हो गया, मान लीजिए आप कहते हैं कि अच्छा मैस्कुलिन देश है तो जापान को लेते हैं जापों, सॉरी जापोन, जापों या कनाडा, ये मैस्कुलिन देश है। इनके पहले हमें ईएन नहीं लगाना, इनके पहले हमें एयू लगाना है। हाँ, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि देश का क्या जेंडर है। देश अगर मैस्कुलिन है तो एयू लगाइए, देश अगर फेमिनिन है तो ईएन लगाइए, देश अगर बहुवचन है, प्लूरल है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो आप लगाएंगे AUX। या वेस्ट इंडीज लेते हैं, ऑन्टी है, प्लूरल है तो AUX लगेगा, प्लूरल। ऑन्टी, ऑन्टी होता है वेस्ट इंडीज, खूब सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इस वजह से, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना। लेकिन तो यूएसए भी बात करें, प्लूरल है क्या सर? या यूएसए इज ऑन्टी, आल्सो, व्हिच वन? यूएसए जो आप बोल रहे थे, यूनाइटेड USA, स्टेट्स yeah, ऑफ Os अमेरिका। Etats Unis. Yeah, you would use O Etats Unis. Os Etats Unis. O Etats Unis. वो इसको प्रोनाउंस भी अलग करेंगे। हाँ, ये इसको बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स है रविंदर, यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स यूनाइटेड, स्टेट्स ओके। यूनाइटेड, Os Etats पर हम Unis। वैसे अगर हमें नहीं याद है हम यूएसए भी बोल सकते हैं ना, हाँ ओ हाँ, बोलते हैं, यूएसए। देखिए बोलते हैं यूएस बोलते हैं, लेकिन Os Etats Unis is the academic way to say United States in French, हाँ। but US you can say US। आजकल हम देखते हैं थोड़ा बहुत फ्रोंगले, इसको जो आप कह रहे हैं ना फ्रोंगले है, फ्रोंगले क्या होता हाँ, है? थोड़ा फ्रोंगले थोड़ा इंग्लिश बोल रहे हैं, लिटिल हाँ, लिटिल तो बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। फ्रेंच और मिक्स ऑफ ऑंग्ले, फ्रॉन, हाँ, या फ्रेंच और ऑंग्ले, फ्रोंगले। जैसे हिंदी और इंग्लिश हम बोलते हाँ, हैं, जो इंग्लिश, उसको हाँ पता नहीं एग्जैक्टली क्या राइट। बोलेंगे। बट फिर भी हम आपको एकेडमिकली सिखाएंगे, बट हाँ आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा माहौल के हिसाब से आप क्या बोलना चाह रहे हैं। बट द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर यूएस विल बी Os Etats Unis। एक बार सब ट्राई करिए एक एक करके, Os Etats Unis, Os Etats Unis। आदि आप बोल के बताइए ओ Os जेता Etats जुनी, Unis। या रविंदर ट्राई कीजिए। Os Etats ओ Unis. जेता जुनी, Perfect. So okay, one by one we'll do first Ravinder and then I'll ask Adi. Yeah, Ravinder, tell me। ओ जेता जुनी, Voilà, Os Etats Unis। या आदि? Os Etats Unis. Très bien, वैभव? Os Etats Unis. Aux États-Unis, Tarun? You'll have to unmute. Aux États-Unis. Aux États-Unis, yeah, absolutely. Because this, I've seen that French people have a huge inclination towards going to the US or going to Australia. These are their preferred destination for higher studies or for future. I mean, we might move to a Western world. Which world do they move in? They move generally to the US or they move to Australia. And if they are spiritually connected and they want to go back to their roots, they come to Indeed. India. So you see what kind of interest they have. It depends, right? So they generally move to Aux États-Unis or en Australie. अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे इसी आधार पे, तो ऑन ऑस्ट्रेली, ऑस्ट्रेली जो ऑस्ट्रेलिया है वैभव वो ज्यादा ऑस्ट्रेली, और ये फेमिनिन देश है, तो ये किससे चालू हो रहा है? ईएन से रखें, ऑन ऑस्ट्रेली, ओ ऑस्ट्रेलिया, ऑन ऑस्ट्रेली। और ये जो ऊपर वाला है ऑक्स ऑन्टली, ये वेस्ट इंडीज है जी, ओजोंटी, ये तो बेचारा चेंज ही कर दिया इन्होंने। या ओजोंटी। तो आप एक बात बताइए मुझे, आप बताइए रविंदर, हिंदी में हम इजिप्ट को क्या बोलते हैं? आपने देखा कभी? पता नहीं, इजिप्ट ही बोलते हैं, मेरे को तो लगता है हम तो शुरू से मिस्र, इजिप्ट मिस्र बोलते हैं, मिस्र। हाँ, ये देखिए अभी मिस्र बोलते हैं, मिस्र। सो मिस्र। या सो दैट, बट हम जनरल बोलचाल में इजिप्ट, अब मिस्र किसी को बोल दिया ना आपने तो कहेगा पता नहीं कौन सा देश है, मतलब हिंदी के अंदर भी हम लोग को कई बार नहीं पता होता। सो दैट्स ट्रू। या चाइना को हम चीन बोल देते हैं, सो वी हाँ। इस हिसाब से। चाइना चीन तो फिर समझ आ रहा है, वेस्ट इंडीज से ऑन्टली मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी कीड़े का वो देख रही हूँ नाम ऑन्टली। चलिए, सो ये तो देखिए, दिस कम्स विद द लर्निंग पैकेज की कहीं आसान रहा है तो कहीं मुश्किल भी है, यू हैव टू डू दैट। ओके, सो वील जस्ट क्विकली जंप ऑन टू द नेक्स्ट प्रीपोजिशन, दैट इज पूर। आई एम श्योर ये आपको पता है, फॉर होता है। तरुण इसको पढ़ के बताइए, ट्यूपलीर, तरुण दिस वन। C'est un cadeau pour toi. Very good. C'est un cadeau pour toi. C'est un cadeau pour toi. What does that mean? C'est un cadeau pour toi, Tarun? One cake for you, or is it something for you? Yeah.
केक कुछ कुछ हद तक वैसा ही सुनाई देता है। ये कादो है which is a gift, so it's a gift for you। Same. देखिए बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, केक और गिफ्ट के अंदर केक सी से चालू होता है और गिफ्ट जी से चालू होता है। गिफ्ट जी से चालू होता है अंग्रेजी में, इंग्लिश में, लेकिन वो सी से होता है फ्रेंच में। और फ्रेंच में केक को क्या बोलते हैं? गातो। Oh. गातो बोलते हैं इसको। गातो गातो वो जी से चालू होता है तो केक पर चालू होता है जी से, और कादो है तो गिफ्ट पर चालू होता है सी से फ्रेंच में। तो आप ध्यान ये रखिएगा। एंटी इंग्लिश होंगे ना, तो इन्होंने कहा हम साथ साथ एक साथ शुरू नहीं करना चाह रहे, तो इन्होंने ऐसे चेंज कर रखे। Whatever suits you. So कादो एंड गातो। अब गातो। देखिए केक और गिफ्ट तो साथ ही जाते हैं। जन्मदिन पे बुलाया जाएगा तो ऑफ कोर्स यू विल फाइंड अ गातो एंड यू विल हैव टू टेक अलोंग अ कादो। सो वो ध्यान रखिएगा। कादो एंड गातो, ओके, प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी सी हाँ सेम है, मतलब क और ग के बाद दो और तो की ध्वनि का दो गा तो दो वाला गातो। गातो गातो सब bien। और फॉर आप जान गए हैं, इट्स पूर। और पूर के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा वैभव, हमेशा हम प्रोनोटोनिक काम में लेते हैं। पूर मुआ, पूर तुआ, पूर लुई, पूर एल, पूर नू, पूर वू, पूर अ, पूर एल। प्रोनोटोनिक लिस्ट आपको याद है। सिर्फ प्रोनोटोनिक यहाँ नहीं काम में आता, हर एक चीज के बाद आता है। यानी प्रीपोजिशंस के बाद तो प्रोनोटोनिक ही काम में आएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। दिखाते हैं आगे। और आवेग, आवेग मतलब विद, राइट, विद। ये वाला ट्राई कीजिए आप रविंद्र, पढ़िए इसको। El Pagle awake so Ami. She speaks with my friend, with her friend. विद Okay. हर फ्रेंड ऑफ कोर्स, या अच्छा ये दो शब्दों में थोड़ा सा इशू था। वापस से बस को ट्राई कीजिए आप रविंद्र। एल आपने बोला था पार्ले। El Pale, Pagle, अच्छा पार्ले तो क्यों होगा? ये थोड़ा सा और अच्छे से पढ़िए, प्रेजेंट टेंस है। एल Pagle, Pagle, Pagle. पार्ल, वेरी गुड। एल पार्ल avec, और फिर यहाँ पे आपको लिएजन करना था। Swami, सोनामी, Sonami. Okay. very good। Elle parle Sonami. avec son ami, elle parle avec son ami। She What does that talks. mean? She talks to her friend, she She talks with talks her with her friend। friend. या with to, जो भी आप अंग्रेजी में बोलना चाहें, पर फ्रेंच में parler avec Sweet. चलेगा, राइट? ओके। और अगर हमें ये बोलना है कि she is talking with me, रविंद्र, how would you say she is talking to me, she is talking with me? वो मुझसे बात कर रही है। Elle parle avec avec moi. Exactly, elle parle avec moi, she is talking with me। Moi. très To bien। me. और With me. अगर Yeah. हमें ये कहना हो वैभव अपने फ्रेंड को या किसी बड़े व्यक्ति को हम कह रहे हैं आप मुझसे बात कीजिए, मतलब आपको कोई नहीं मिल रहा ना, तो आप चिंता मत कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए, कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे बात कीजिए। कैसे आप बोलेंगे ये इम्पेरेटिव फॉर्म में वैभव? Vous parlez avec moi? वेरी गुड, बस वो छोड़ दीजिए। Parlez-vous moi? Avec moi. Parlez Parlez avec avec. moi। आप कहते हैं इंपेरेटिव में क्या था वैभव? हम वो को ड्रॉप कर देते थे। जब हमने डायरेक्शंस पढ़ा था, याद है आपको डायरेक्शंस वाले चैप्टर में, तो हमने आपको सिखाया था कि हम ट्यू, नू और वो के केस में इंपेरेटिव चलाते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो हम वो का वो शब्द हटा देते हैं। मुझसे बात कीजिए, आप नहीं बोल रहे, हम क्या कह रहे हैं रविंद्र? मुझसे बात, कोई भी मुझसे बात तकलीफ हो, कीजिए। मुझसे बात कीजिए, राइट? Okay, yes. Any problem? वो हटा देते हैं, Parlez, right? parlez avec moi. Parlez avec moi। ओके, चलिए स्यूर पे चलते हैं। What स्यूर is होता है या what is the meaning El Pal El Pal avec Swami What does that Tsunami? mean? Elle parle avec son ami, anyone? What does that mean? वो लिखा हुआ साथ में she talks with her friend, तरुण, साथ में इंग्लिश में लिखा हुआ she talks with her talks friend. with her friend। Yeah, she talks with her friend। Elle parle avec son ami, she talks with her friend। यहाँ पे जो फ्रेंड है वो मेल फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है, बता सकते हैं या नहीं पता, या वी डू नॉट नो? Sonami, Ami, Ami, Ami. ये Male है, male। फीमेल लग रही है मुझे तो, Ami. अच्छा या वैभव आप बताइए, वैभव Male। मेल फ्रेंड है फीमेल फ्रेंड है? मेल मेल है ना, फीमेल होगा तो ई आएगा लास्ट में। हाँ वेरी Okay, गुड। हाँ, फीमेल होता तो अच्छा, एक्स्ट्रा ई आता। वेरी गुड, दैट्स ट्रू। पूरी पूरी क्लास में मुझे सिर्फ वैभव जी लगते हैं जो मतलब एक सिंसियरली ना देखते हैं पढ़ते हैं। आई रियली लाइक हिज क्वेश्चन जो पूछते हैं। दैट्स व्हाई अभी कई बार हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, इनके में आ गया, या इनके में नहीं आ रहा हमारे में, हाँ, दैट वे वी कैन ऑलवेज लर्न विद लॉट ऑफ पीपल टुगेदर। ग्रेट। AM ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्यूर, स्यूर होता है ऑन के ऊपर, उसकी पोजीशनिंग है, राइट? सो हम देखते हैं, ये आप बताइए आदि, पढ़िए इसको। The livre est sous la table। या व्हाट डज दैट मीन इन इंग्लिश? The book is on the table। परफेक्ट, एकदम वर्ड टू वर्ड, द बुक इज ऑन द टेबल। और बताइए
एकदम सेम चलता है ना, सू ऑन द टॉप टेबल, राइट? ओके, सू, सू होता है अंडर, राइट, नीचे। सो आप बताइए वैभव, नहीं, आई रिक्वेस्ट फर्स्ट तरुण, तरुण टू रीड दिस वन। लेचा ए सुले सुललित ओके, ललित तो काफी हद तक अच्छा पढ़ा। फिर से पढ़िए, एल ई को क्या पढ़ेंगे तरुण? ल, ल सी एच ए टी को ल चा नहीं, च नहीं, सी शा एच ओ श पढ़ते हैं तो शा, शा। शा फ्रेंच भाषा में च है ही नहीं, देयर इज नो च, आप च बोल ही नहीं सकते, यू नो, फ्रेंच पीपल नेवर से च, दे हैव नॉट गॉट दिस च साउंड एट ऑल। सो ल शा ए ल सु, ल शा ए सु ले सु ल सुल ली या, जस्ट अ सेकंड, इट्स गेटिंग, या, सु ल ली, या परफेक्ट। ल शा ए सु ल ली, क्या मतलब है इसका? या what does that mean? under the bed. the cat, okay. The Yeah, the cat cat is is under under the bed, right? आप और कंफर्म भी कर सकते हैं, the cat is under the bed, right? तो ये आपको ध्यान रखना है, the cat is So, under the bed. या बेड को लिट कहते हैं। बेड को बोलते हैं ली, 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 ओके, ली ली, बोलते हैं, LIT, LIT, स्पेलिंग और ये- LIT है, हाँ, और पढ़ते ली है, ली, ल और बड़ी ओके। की मात्रा ली। से मुआ ली, ये मेरा बेड है। से मो ली, से मोली, ओके। मुआ क्या हो जाएगा? मुआ, फिर अगर मैं तो मुआ हूँ, कहती हूँ, मुआ तो मैं हूँ, से मुआ, इट्स मी। अच्छा। आई मुआ थिंक के मैं कोई बाद, भी सेंटेंस अगर ट्राई कर रही हूँ ना, मुआ मुआ ही निकल रहा है मेरे से। हाँ, सब लोग यही करते हैं, डोंट वरी, आपको ध्यान रखना है। अगर आप रविंदर कोई चीज का पोजीशन बताना चाहते हैं, मेरा है, मेरी है, तो मोमा में जाएंगे, से मोस्टली, मुआ में, ओके से ओके। मोली, से आपने कहा था ये मेरी डॉटर है, से मा फी, से मा से फी, माफियर, से मा मेजों, ओके। ये मेरा घर है। तो मोमा में के बाद वो ऑब्जेक्ट आता है जो आप पोजेस करते हैं, लेकिन मुआ के साथ या तो एडजेक्टिव आएगा, आई एम सॉरी, मुआ के साथ या तो प्रपोजिशन आएगा या कुछ नहीं आएगा, जैसे इट्स मी, से मुआ, से मुआ, से मुआ, या फिर ओके। tu manges avec moi, tu manges avec moi, मेरे हाँ, तो मेरे साथ खा रहे हो मेरे क्या? साथ, हाँ, tu manges avec moi, oui je mange avec toi, तो वहां पे हम moi toi लगाएंगे प्रोनोटोनिक के हिसाब से प्रपोजिशंस के बाद। मैं एक सेंटेंस बनाऊं, मैंने ना बनाया था, बट बोलिए। आई डिड नॉट यूज, अपॉइंटमेंट के लिए मुझे बनाना था। अच्छा, बताइए। आई वांट टू, जे प्रितौंद, आई डोंट नो, मैं भूल रही हूँ उसको, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही। जे ओके, प्रितौंद rendezvous, je prétends rendez-vous avec, not avec, pour moi, bébé, ओके, moi bébé, mon bébé, अगेन वही मो, MON, मो बेबे, mon bébé, मो, okay, मो moi है, तो मेरा, मैं हो हाँ, जाऊँ खुद बेबे। मुआ तो मैं हो जाऊंगा। तो आप जो कहना चाह रहे हैं शब्द, मेरे को लगता है आप प्रौंद्र की बात कर रहे हैं, हाँ प्रौंद्र। जी, हाँ, ये प्रॉन्द्र, ये मुझे, Je मैं voudrais- प्रोनाउंस नहीं कर पाती इसको। कोई बात नहीं, je voudrais prendre un rendez-vous avec le docteur, avec le अच्छा, ये भी médecin, लगाना था। pour mon bébé, voilà। तो je voudrais prendre un rendez-vous avec le médecin या avec le docteur, डॉक्टर भी बोलते हैं फ्रेंच भाषा में, डॉक्टर वाला जो शब्द है, DOCTER, डॉक्टर। avec le तो docteur। ये वुद्र क्या हो गया? ये जो वुद्रे है, ये बड़ा पोलाइट तरीका है रविंद्र कोई चीज मांगने का, बोलने का। आई वुड लाइक टू Okay. टेक एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर फॉर माय चाइल्ड। सो इसको क्या प्रोनाउंस करा आपने? वुद्रे, 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 वुद्रे मतलब वुड लाइक। वुड लाइक, हाँ, और ये वुलवार वर्ब से आया है। अगर आपको याद है, बहुत शुरुआती क्लास में हाँ हमने हाँ जी, हाँ जी, बुलवार बुलवार वांट पढ़ा था हमने। तो द्वार। हम फ्रेंच कॉन्टेक्स्ट में आदि हम कभी ये नहीं बोलते आई वांट टू टेक एन अपॉइंटमेंट, दैट इज ओके, बट दैट साउंड्स रूड टू पीपल, दैट साउंड्स रूड। आई वुड नॉट से ज व, मैं इसको काट के VEUX नहीं कर सकता कि ज व मुझे Okay. चाहिए, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ऑन द कॉन्ट्ररी, और ये सही है,
वुद्रे बोलना पड़ेगा, je voudrais, right? So I would rather je voudrais prendre un rendez-vous. ओके, मैंने भी नहीं लगाया. prendre un rendez-vous avec les docteurs. मैंने avec भी नहीं लगाया, मैंने सीधा ये ट्राई किया. je prendre un rendez-vous pour moi. ओके, ठीक है, ठीक पर है मैंने वो कॉल नहीं किया, बट मैंने बस बना के छोड़ दिया. अच्छा, अब कॉल करें तो ये बोलिएगा, ठीक है. हाँ जी. हाँ, और मैंने सामने कहा एक वाले को सेंटेंस तो मैं बोलूंगी, बाकी वो बहुत अच्छे से फ्रेंच बोलेगी, फिर मुझे समझ नहीं आएगा. देन आई हैड टू वेट फॉर माय डॉटर टू कम एंड देन शी कॉल्ड एंड टुक द अपॉइंटमेंट. नहीं, that's good. No, that's how you start. And the best part is you people are totally immersed in the culture. So आप तो experiment कीजिए, बोलिए, गलत सलत जैसा भी है. The more you practice, the better you become. That's the only, way out for us. So when I practice with them, sir, वो ना कंफ्यूज हो जाते हैं. I try. They get वो confused because मेरी इंग्लिश भी आ जाती है साथ में I और know. फ्रेंच भी आ जाती है. नहीं, and the different part is that the people with whom you're practicing, they are not teachers. वो Yep. फ्रेंच बोलते हैं. अब मैं समझ जाता हूँ कि आपके दिमाग में ये prendre ही था, because I know how people feel for this word. But people, Yep. even French people might not understand कि क्या आप word बोल रहे हैं, because they would not see it from your angle. क्या वो कितना कुछ आता है, कैसे अपने evolve किया. So you need both. You need a teacher who knows how Yep. to guide you, and you need an ambience to Yep. train and practice. But of course, there might be people who will help you. There might be people who might not be able to help you, so that's okay. Not a problem. चलिए, so ये हमने देखा सू. सू इज अंडर. अगर पोजीशन अंडर की है तो हम बात करेंगे सू की. जो पैसा होता है उसको भी सू बोलते हैं फ्रेंच में, स्लैंग में. सू, Okay. SOUS. तो आप लोग फ्रांस में हैं तो आप याद कर सकते हैं. आर्जों, इसका जो फॉर्मल तरीका होता है ना पैसे को, उसको बोलते हैं आर्जों. पैसे को बोलते हैं आर्जों. आर्जों, पैसा, आर्जों. और जो सू है वैभव, दैट इज अ स्लैंग. सू मतलब पैसा, बट इन अ स्लैंग वे. सू. Je n'ai pas de sous, मेरे पास पैसा नहीं है. Je n'ai pas de sous. Je n'ai pas de sous. सेम स्पेलिंग है, बट वो अंडर नहीं है उसका मतलब. उसका सेंस है मेरे पास पैसा नहीं है. I don't have money. Je n'ai pas de sous. तो मतलब आर्जों. जनेपा द अर्जो भी बोल हाँ सकते हैं, हाँ, बोल सकते हैं. राइट? तो बड़ा फॉर्मल तरीका है जो आप लोगों ने. n'ai je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. I don't have money. Je n'ai pas d'argent. Right? That means. अगर ये पूछना है इसका कॉस्ट क्या है, से आर्जो. नहीं It's नहीं cost. नहीं, फिर तो आप बोलेंगे ना से combien. अच्छा, प्राइस अगर पूछना है कि कोई चीज का, से कॉम्बिया. या तो आप बोलेंगे से combien, या आप ये भी बोल सकते हैं ça coûte combien. व्हाट इज कूट? सुना हुआ है मैंने. जो कूते वर्ब होता है ना, वो होता है टू कॉस्ट. हाँ, एक्यूट. जो कूते वर्ब होता है ना, COUTER, कूते मतलब टू कॉस्ट. टू कॉस्ट. ओके. या से कॉम्बिया, सा खुद कॉम्बिया. मीनिंग दोनों का सेम है. दोनों का है. ये कितने का है, ये इसकी कीमत क्या है. से combien, ça coûte combien. ये आपको काम आएंगे. बड़ा अच्छा है ये दोनों सवाल, बिकॉज आप जब डायलॉग्स बनाएंगे तब ये आपको जरूरत पड़ेगी इसकी. एक डायलॉग खेलेंगे हम लोग. आप एक मार्केट में हैं, आप एक पेन खरीद रहे हो, आप 1 किलो आलू खरीद रहे हो. सो यू शुड बी you'd be using these kind of questions, right? और अगर पूरा आपको पूछना है कितना हुआ, जब आपने 4-5 चीजें खरीदी, तरुण आपने पूछा कितना हुआ, तो आप कहते हैं ça fait combien. ça fait combien. ये एकदम अंत का प्रश्न है वैभव. जब सब खरीद लिया तो कितना हुआ. हिंदी में भी बोलते हैं और व्हाट्स द टोटल. हाँ जी. तो साफे, कितना हुआ. ओके. ça fait combien, ça fait combien. और कई बार बहुत बेसिकली बोलते हैं quel est le total. quel est le total. Quel est le total. Quel est le total. ये भी आप बोल सकते हो, which is basically if you were to ask in the कितना end, टोटल हुआ. या कितना टोटल हुआ, तो उस हिसाब से भी हम फ्रेंच के अंदर भी ये बात बोलते हैं. चले. quel est ये le इजी है total. सर, ये केले टोटल इजी है. Sorry. दिस इज इजी. केले टोटल इज हाँ, बिट quel est le total. या बट आप ये तो कोई भी बोलेगा. आप मुश्किल वालों पे जाइए. आप try to experiment with them. Yeah, so that's true. Perfect. très bien. quel est le total. चलिए, so ये 4 आप याद रखिएगा, everyone, Adi and everyone. Why? Because they are going to help you, these sentences, when you would be working on the dialogue making. Dialogue making के टाइम आपको ये आने चाहिए. c'est combien, ça coûte combien, ça fait combien, quel est le total. और एक ऑब्जेक्ट की यदि कीमत जाननी है तो उसका एक और प्रश्न आखिरी बताता हूँ. quel est le prix. quel est le
Prix. What is the price? प्री P-R- ओ P-R-I-X. अच्छा ये बड़ी बार सुना है मैंने प्री ओके Quel est le PRIX prix? Yeah. P-R-I-X. Prix. Quel est le prix? ये मुझे लगता है ये प्री शब्द हमारे कहीं ना कहीं उसमें आया था टेक्स्ट में, आप याद कीजिएगा। तब हमने प्री Yes. पढ़ा था ये शब्द, मुझे ऐसा याद सा रहा है, तब हमने तब भी देखा था। तो अब आप धीरे धीरे आप क्या कीजिएगा, जब भी समय मिले वापस पुराने टेक्स्ट पे जाइए, आदि, वैभव, तरुण, रविंद्र भाई, बिकॉज अब आपको नॉलेज बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो यू वुड गो बैक एंड यू वुड सी, अच्छा ये प्रपोजिशन है मुझे आता है अब, ओके ये वर्ड्स है मुझे आते हैं, कॉन्जुगेशन है मुझे आता है। सो दैट टेक्स्ट विल बी, आई मीन आई होप इट शुड बी इजियर फॉर यू नाउ। ओके चलिए, तो हमने देखा अभी एक और एडजेक्टिव, आई एम सॉरी, एक preposition होता है सु, व्हिच इज अंडर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज entre। entre मतलब होता है, एनी गेसेस व्हाट इज entre? बिटवीन, बिटवीन बिटवीन के बीच में, राइट? के बीच में जब हम बात करेंगे तो हम entre की बात करेंगे, ENTRE entre। entre एक क्रिया भी होती है, entre प्रवेश करना, entre to enter, ENTRER, राइट? आप कंफ्यूज मत होइएगा उससे, वो होती है ENTRER, entre to enter, प्रवेश करना। ओके तो अगर मुझे मेरे फ्रेंड को कहना है आदि अंदर आजा, अंदर आजा, व्हाट शुड आई टेल हिम इन वन वर्ड? Entre. entre, वेरी गुड। मैं उसको क्या बोलूं? entre, आजा, entre। और अगर मुझे कहना है तरुण किसी बड़े पर्सन को अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, एक वर्ड में मैं कैसे इंपेरेटिव में कहूंगा अंदर आ जाइए? ऑन्ट्रे प्ली या s'il vous plaît entre, ऑन्ट्रे प्ले Entre, s'il vous plaît s'il vous plaît. entre, s'il vous plaît। Entrez, s'il vous plaît. वाला entre, राइट? entre, ये आपको ध्यान रखना है। और आपने देखा होगा हम कि ऐसे नहीं बोल सकते हाँ बोलिए रविंद्र। सॉरी Can you please? हम It's ऐसे नहीं more बोल like, can सकते you please? s'il vous plaît ऑन्ट्रे, ये गलत हो जाता है। हम s'il vous plaît एंड में लगाते हैं, इंग्लिश में प्लीज एंटर बोल सकते Okay. हैं, बट फ्रेंच में entre, s'il vous plaît बाद में। या Entre, तरुण, यू आर सेइंग समथिंग? तरुण? हाँ नहीं, I was saying that s'il vous plaît is like it's more like can you please come? It's not please. Yeah, instead of please, instead of can, it's more like, you know, you're insisting on the fact for this person to enter. So entre, s'il vous plaît, कृपया आइए, you know, it's a request, it's a polite way to express, and it's not can। can तो क्या होगी, संभावना हो गई, you know, you can, आप आ सकते हो, बट यहाँ तो आप चाहते हो कि व्यक्ति आए। जैसे manger s'il vous plaît, आप मिठाइयों का डिब्बा आगे ऑफर कर रहे हो अपने कलीग को और कह रहे हैं manger s'il vous plaît, you know, खाइए प्लीज, तो उस तरीके से manger एक वर्ड। entre वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको एक दो और मैं बताता हूँ इसके कॉन्टेक्स्ट। एक होता है entre, entre होता है एंट्री, जो प्रवेश होता है ना एंट्री, उसको बोलते हैं entre। आई डोंट नो आपने कभी देखा है। एक सख्ती होता है SORTI, सख्ती सख्ती होता है एग्जिट, यानी वहां से आपको एग्जिट करना। एक जगह होता है entre, प्रवेश करना है, ऑन्ट्रे entre, तो उसकी स्पेलिंग होती है ENTREE, entre, entre, राइट? entre बोलते हैं उसको, entre। यहाँ गेट पे लिखा रहता है entre Yep. et sortie, यहाँ से तो प्रवेश कीजिए और यहाँ से आप बाहर जाइए, entre sortie। So that's how you would see entre and sortie। entre, ये भी इसी तो ये family ऑन का है, सॉरी, सॉरी, या वैभव? जो बिटवीन वाला है वो ऑन है। हाँ हाँ, ये बिटवीन वाला entre है, ये तो अभी हम इस पे आए नहीं, हम preposition को तो entre पढ़ेंगे, वो entre है, वो बिटवीन है। मतलब इसमें त्र के ऊपर मात्रा है कि ऑन्ट्रे है, ये जो एंट्री है ये वाला एंट्री है। इस, हाँ ये entre है, इस पे ई पे एक्सेंट है और एक और एक्स्ट्रा ई है, और ये एंट्री है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ना एंट्री। एंट्री ये नाउन है, संज्ञा है, ये दैट्स अ नाउन, ठीक है। और एक आखिरी चीज, entre का एक और मतलब होता है जब आप खाना लेते हैं, एंड व्हेन यू हैव स्टार्टर्स, स्टार्टर्स जब खाते हैं उसको बोलते हैं l'entrée, entre, स्टार्टर्स को entre बोलते हैं, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना, राइट? सो entre के दो मतलब हो गए, तो एंट्री और एक हो गया स्टार्टर्स। वैसे भी देखिए स्टार्टर्स भी एक प्रकार से एंट्री है, मतलब शुरुआत कर रहे हैं आप भोजन की, यू नो, यू आर स्टार्टिंग विद द स्टार्टर्स, सो स्टार्टर्स को बोलते हैं entre। ओके, अब आते हैं हमारे मेन वर्ड पे, जो हमारा preposition हुआ So या तरुण। can you please come inside is entrees. या Entre. entre, entre s'il vous plaît, ये वाला entre s'il vous plaît, entre s'il vous plaît, अंदर आ जाइए। और आपका फ्रेंड है अगर वो, मतलब आपका इनफॉर्मल कनेक्ट है उससे तरुण, तो आप कहेंगे entre s'il te plaît, entre s'il te plaît। और जो ये नीचे वाला जो है लास्ट वाला ये दिस वन, यस, ये है entre, ये entre है जिसका मतलब होता है, entre का मतलब है एंट्री, एंट्री, या फिर स्टार्टर्स, जो खाने के पहले हम स्टार्टर्स लेते हैं उसको भी हम बोलते हैं फ्रेंच में
entrer. ओरिजिनल जो वर्ब है वो entrer है ना? Entrer is the original Original verb. verb है entrer, entrer, to enter. Right? I'll just repeat the whole thing once for everyone so that there is no confusion. Verb is entrer. Entrer means to enter, प्रवेश करना. इसको अगर मुझे फ्रेंड को बोलना है इंपेरेटिव फॉर्म में अंदर आ जा, मैं बोलूंगा entre. और अगर किसी बड़े व्यक्ति को बोलना है अंदर आ जाइए तो मैं बोलूंगा entre s'il vous plaît. फिर मैंने आपको बताया कि जो वर्ब है इसका एक नाउन पाया जाता है, उसको बोलते हैं entrer. ई के ऊपर एक्सेंट होता है, उसके दो मीनिंग होते हैं, या तो होता है वो एंट्री या फिर वो होता है स्टार्टर्स. क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है. अब हम इसी से मिलता जुलता एक प्रपोजिशन होता है entre. entre उसकी शक्ल एकदम इस जैसी लगती है. जब मैं अपने फ्रेंड को कहता हूँ ना अंदर आ जा, entre, तो वैसा वैसा इसका स्पेलिंग है ENTRE, राइट? लेकिन ये एंट्री करने की बात नहीं हो रही. यहाँ पे हम दो चीजों के बीच की बात कर रहे हैं, तरुण, which means between. So I'll request Vaibhav to read this one. Il est entre le deux arbres. Voilà, il est entre les deux arbres. Il est entre les deux arbres. What does that mean? Arbres. He is between the two trees. Yeah, he's between the two trees. Voilà, très bien. या फिर le stylo est entre le livre et le sac. What does that mean, Ravinder? Le stylo est entre le livre et le sac. Le stylo est entre le livre et le sac. The pen Hmm? is between the book and the bag. The bag. Very good. The pen is between the book and the bag. Perfect. Entre. Right? एकदम इंग्लिश जैसा चल रहा है. The pen is between the book and the bag. Okay. अगला हम देखते हैं. Yeah. How do you read that, Adi? DEPUIS. Depuis, Voilà. Depuis. 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 Depuis means since or Since for. or- देख लेते हैं. For example, if you were to read this one, Adi, read this out for me in French. je vis ici depuis 5 ans. Voilà. Je vis ici depuis 5 ans. What does that mean? I have lived here for 5 years. ठीक है. या फिर I have been Been living here. living here for 5 years. हाँ, मैं मतलब लगातार 5 सालों से यहाँ रहता आ रहा हूँ, रहती आ रही हूँ, राइट? रह रहा हूँ बेसिकली. I am living here since 5 years, राइट? ओके. सो ये since जो होता है वो depuis होता है. ओके. पार. या वैभव, you want to say something? Tell me. या सर, इसमें वो GEI वाला यूज कर सकते हैं या नहीं कौन सा आई वाला? हैव में वो J एपोस्ट्रोफी AI करते हैं ना यूजुअली. J. हाँ, I have I- a J. ये वाला आप कह रहे हैं? हाँ यस यस. हाँ, नहीं पर सॉरी. पर अब देखिए होता क्या, इंग्लिश में और फ्रेंच में यही फर्क है बोलने का. आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years. तो इंग्लिश में जब आप ये कहते हैं ना, इसलिए मैं इस वाक्य को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मान रहा इसके अनुसार. आई वुड रादर चेंज इट. आई वुड से आई हैव जे. आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years. एक्चुअली क्या ये आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years जब आप बोलते हैं ना, तो इसका सेंस है कि मैं यहाँ पे 5 साल तक रहा हूँ. अंग्रेजी में ये पता नहीं चल पा रहा कि आगे अब मैं और रहूंगा या नहीं रहूंगा, या आगे का नहीं पता. बट फ्रेंच में भी कुछ कुछ तो समझ में आता है इसमें. Je vis ici depuis 5 ans. आई एम लिविंग हियर. इसको एकदम Since 5 translate years. word to word, तो आई एम लिविंग हियर. आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 5 years. मैं यहाँ पे 5 सालों से रहता आ रहा हूँ. ये है. तो इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, इंग्लिश में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऐसे बोलने की, बट मीनिंग क्लियर होना चाहिए. तो ऐसे जब आपने मुझसे पूछा ना Yes. कि आई हैव को क्या हम ये लिख सकते हैं, आप लिख देंगे तो आपका सेंस बिगड़ जाएगा फ्रेंच में. क्योंकि फ्रेंच में जो सेंस है वो है कि मैं यहाँ पे 5 सालों से रहता आ रहा हूँ. ये करते ये पासे कंपोजिट बन जाएगा कि मैं यहाँ पे 5 सालों तक रहा. मैं यहाँ पे तो 5 अगर सालों तक सर रहा. या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे वैभव ने बोला जे या बीत इसी दीपी सैंकों. हाँ, ये कर सकते हैं. पर ये नहीं करेंगे हम जाबीत. तो हम क्या करेंगे, जो वी है ना रविंद्र, तो उसको बोलते हैं जाबीत. जाबीत इसी depuis 5 ans. ये कर सकते हैं. ये कह रहे हैं Okay, हम je vis की जगह जाबीत.
अच्छा, उसमें भी फिर जे नहीं आएगा, j'habite ही आएगा, फिर हाँ, वो verb आई je, एम आई एम ओके, क्योंकि वो आई एम के उस सेंस में हम बना रहे हैं, आई हैव नहीं कर रहे हैं उसको। हाँ, जो वैभव का क्वेश्चन था वही था कि इंग्लिश में जब आई हैव लिखा हमने, आई हैव लिव्ड, हाँ तो जी। उसको हमने जे करके क्यों नहीं करा या कर सकते हैं क्या? Isn't it, वैभव? That was your question. So what I'm हाँ trying to कर say सकते that हैं क्या, सही था हाँ, मेरा। तो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते। रीजन भी इंग्लिश में आपके पास ये फ्रीडम है ऐसे बोलने की, that I have lived here, I have lived here for 5 years। आपको फील समझ में आता है, I have lived here, मैं यहाँ पे 5 साल तक रहा हूँ, जिया हूँ। या फिर इंग्लिश में बेहतर होगा कि हम ऐसे बोलें इसको वैभव, आई एम लिविंग हियर, आई एम लिविंग हियर सिंस 5 years। तब शायद Yes. आपको ये कनेक्ट कर जाएगा इजीली, क्योंकि ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है आई हैव को हमने फ्रेंच में ऐसे क्योंकि बिकॉज अगेन गोइंग बैक टू द सेम ओरिजिनल सेंटेंस, ओरिजिनल थॉट दैट आई गिव टू यू ऑल पीपल। इंग्लिश में कैसे बोल रहे हैं, फ्रेंच में कैसे बोल रहे हैं, ये डिफरेंट अब होता जाएगा जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंच में। देयर वुड नॉट बी लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा इंग्लिश में ऐसे बोला तो फ्रेंच में ऐसे बोला, ये है रीजन। क्लियर है आपको? तो अपनी इंग्लिश को दुरुस्त रखिएगा। देयर इज अ स्पेसिफिक वे टू स्पीक इट इन इंग्लिश एंड देयर इज अ स्पेसिफिक वे टू से इट इन फ्रेंच। या So सो इसको इसको एक बार इसको दोबारा ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कि जहाबीत पो 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 जहाबीत पो, हाँ बोलिए। ओ नो नो ओ नहीं, पो पो पी ओ पूर यू आर पूर पो हाँ, पूर 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 पूर, हाँ, यस यस। पूर पूर सेंग आ सेंग आ। अब बिल्कुल मैं उस पे आता हूँ आपकी पूर्व वाले शब्द पे। मैं इसको बस थोड़ा सा चेंज कर रहा था, तो आपने वी की जगह आबीत लगा दिया। j'habite à Toulouse depuis 2 ans, which again means that I have been living, I have been staying in Toulouse since 2 years। यहाँ तक क्लियर है? अब तरुण ने बोला है कि हम इसको क्या depuis की जगह पूर्व लगा दें, for लगा दें, तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। जब आप ये करेंगे, इस वाक्य को मैं यही लिखता हूँ, यहाँ कैरी ऑन करता हूँ। जब आप पूर्व लगाते हैं ना तरुण, तब आप उस समय अवधि को, उस ड्यूरेशन को पास्ट में या फ्यूचर में उसको फिक्स कर लेते हैं। उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता। हाउ आई टेल यू, व्हेन यू से आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 5 years, so what happens is वैभव, आप 5 सालों से अभी तक ट्रैवल करके आते हैं प्रेजेंट टेंस में, ठीक है रविंदर? बट जब आप फॉर लगाते हैं ना तरुण, तो फॉर एक समय की अवधि है 2 सालों की, जो पास्ट के अंदर भी पूरी की पूरी रह सकती है, उसको पूरा मूव कर सकते हैं आप ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन सिंस को आप सिर्फ प्रेजेंट तक ला सकते हैं, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। Yes, अंडरस्टैंडिंग? correct. So how you would say, I'll tell you, I'll get you the sense. J'ai habité à Toulouse pour 2 ans। मैं तुलूज में 2 साल के लिए रहा, ये हो जाएगा फिर पास्ट टेंस। क्योंकि जो आपने पूर्व बोला है ना तरुण, वो समय अवधि फिक्स है, वो प्रेजेंट टेंस तक नहीं आई है। प्रेजेंट टेंस तक तो सिंस आता है। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 5 years। डज दैट मेक सेंस टू यू? रविंदर, यू वांट टू से समथिंग? बताइए। नहीं, आई थिंक इंग्लिश में भी यही रीजन होता है जब यही आप रीजन होता फॉर है, और सिंस लगाते हो, फॉर और कि सिंस फॉर लगाते आप हैं। बोलते हो कि हाँ रहे हाँ, हो, तो इंग्लिश में भी, और सिंस का आप बोलते हो कि यू बीन लिविंग हियर सिंस, एंड वहां हाँ, यू लिव देयर फॉर इतने इयर्स, फॉर राइट? फॉर का क्या नहीं होता है? मैं शुरुआत वाला पॉइंट मैं आपको एक बार बताता हूँ और फिर आप क्लियर कीजिएगा तरुण। फॉर में शुरुआत वाला और लास्ट वाला पॉइंट जो है वो प्रेजेंट से कनेक्टेड नहीं है। वो एक समय अवधि, इसका शुरू और आखिरी आपको 2 साल पता है, और वो कहीं पे भी आप रख सकते हो टाइम स्पैन में। लेकिन सिंस जब चालू होता है वो प्रेजेंट टेंस तक आता है, यहाँ तक। अब आप बताइए तरुण, यू वांट टू से समथिंग? yeah, so no, you were saying that you were saying that this that we use je we is the p saying on when in present tense, we want to yeah, we want to tell that we are still living। we are living in past, we are living in present, we are living in future. Okay, so so that's why I asked that we should we can we use more because uh, because four is more relevant I'll to tell that you. I got your context. point. So, if you Yeah. are still staying and you have been staying since 5 years, मैं पिछले 15 सालों से जयपुर में रह रहा हूँ, रहता आ रहा हूँ। That means I have been staying since 15 years and I'm still here. So I will say, j'habite à Jaipur depuis. कब से? Depuis
15 ans, depuis 5 ans, depuis, तब से लेके अभी तक। इसलिए मैंने कौन सा टेंस लिया काम में वैभव? प्रेजेंट टेंस, क्योंकि मैं अभी भी तो रह रहा हूं। लेकिन मैं दिल्ली 3 साल के लिए रहा, तो 3 साल के लिए, फॉर 3 years। जैसे जैसे इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूस सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है, आई हैव बीन लिविंग इन दिस या आई हैव बीन डूइंग दिस ठीक है, from last from since प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज होता है इंग्लिश में। यस, इंग्लिश में जो यूज इसमें होता है मैं सिंस, और या आप फॉर भी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जा हबीत हमें प्रेजेंट के लिए यूज करना है, और ये जो आपने जा past tense हबीत बताया। वो हमें प्रेजेंट के लिए यूज करना है, और नहीं, द past के पीस। लिए। I'll reiterate on the point. Even in English, when you use present perfect continuous, when you say I have been doing this work since my childhood, Yes. इसका मतलब ये होता है कि you have been doing it since your childhood and you're still doing it. It still goes into Yes. continuous. तभी तो उसका नाम है present perfect continuous, right? That takes you in past, Yes. that shows the duration, and you're still doing it. It also takes the same formulation, Tarun, as we take it in French, since. तो अगर आप अभी भी वो चीज करते आ रहे हैं, बहुत सिंपल सा रूल है, तो आप depuis लगाइए। और अगर वो टाइम फ्रेम का जो एक पीरियड है वो ओवर हो चुका है, या उसका शुरू और लास्ट पता है आपको, लेकिन वो प्रेजेंट से कनेक्टेड नहीं है, तो वो फ्यूचर में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है। तो हम पूर्व लगाएंगे। उदाहरण के लिए, पास्ट में मैं 2 साल के लिए दिल्ली रहा, I stayed in Delhi for 2 years. I will never say this thing that I stayed in Delhi since 2 years. That makes no sense, क्योंकि अब आप रहने के खत्म हो चुका, रहने का जो काल है वो पीरियड खत्म हो चुका। So I will use for in English. So it will be the same in French. J'ai habité à Delhi pour 2 ans. किसने मुझसे पूछा कितने साल रुके दिल्ली में? j'ai habité, ये past tense, I haven't taught you people, but थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। J'ai habité à Delhi pour 2 ans. 2 सालों के लिए रुका मैं, करेक्ट? और ये फ्यूचर में भी जा सकता है रविंदर, जैसे आप कितने घंटे काम करेंगे? je vais travailler pour 3 heures. मैं 3 घंटों के लिए काम करूंगा, है ना? तो वो मैंने वो ड्यूरेशन, वो अवधि। तो ये जो आपने अभी आपने जो अभी स्क्रीन पे जो ट्रांसलेशन दिखा रखा है, इट्स एक्चुअली आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years. इज इट करेक्ट? ना, आई हैव लिव्ड हियर भी ठीक है, लेकिन इसको नहीं, ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन, डायरेक्ट ट्रांसलेशन। मैं ये बता दूं, देखिए इंग्लिश का वाक्य सही है, क्योंकि यहाँ पे इसने उसको खत्म कर दिया है, उस पीरियड को, उसने पीरियड को खत्म, इसलिए उसने एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई, ये सेंटेंस जो है ये अपने आप में तो ठीक है, लेकिन ये इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बैठा। दैट्स व्हाई द होल थिंग केम अप। सो आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years दिखाता कि मैं जी लिया यहाँ पे 5 साल के लिए, राइट? सो दैट्स व्हाट आई सेड, वी डोंट नो कहीं और मूव हो गया। वो आगे और रुकेगा या नहीं रुकेगा, वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप इसको इजीली ट्रांसलेट करते तो लिखते आई am living here since 5 years. That's the best one. Since 5 years. ये हो जाएगा, राइट? ये एकदम सही है जो उसका ट्रांसलेशन। आई एम लिविंग हियर सिंस 5 years. ये है। Got it, Tarun? But in French it is the same, or it's Yeah, different in the French? नहीं, in French it is the same as in English. Okay. In French it is the same as in English. तो ये वाला जो वाक्य ना, I have lived here for 5 years का हो जाएगा j'ai habité ici pour 5 ans. अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसको ये ट्रांसलेट करेंगे j'ai habité ici pour 5 ans. मैं यहाँ पे 5 साल के लिए रहा। अब आगे रहा नहीं रहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक मैं यहाँ 5 साल के लिए आई हैव फिनिश्ड इट, मैंने उस टाइम को खत्म कर दिया। लेकिन मैं 5 सालों से यहाँ रहता आ रहा हूँ, विल बी j'habite je vis ici depuis 5 ans. सेम इंग्लिश वाला, अगर आपका इंग्लिश वाला आपको पता ही क्लियर है कैसा बोलते हैं सिंस एंड फॉर, सेम तरीका है फ्रेंच में भी सिंस एंड फॉर के लिए। विस का क्या मतलब है? ये वीव्र से आया है, ये वीव्र वर्ब है। वीव्र इज टू लिव। अब क्या फर्क होता है वीव्र में और अबीते में? या तरुण? Yeah, I was asking that only. What is the difference? Yes, yeah. So weave is to live. अब होता क्या है, जब आप when you live you are emotionally connected, and when you abite is just the fact of staying somewhere. So अगर आपकी आत्मा का जुड़ाव है उस जगह से, आपके emotions हैं, तो आप weave verb use करते हैं, आप really connected हैं। I've lived there and I abite को भी हम live बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन ये stay की तरह है, live के बीच में, मतलब इसके अंदर emotional connect कम होता है, इसमें emotional connect ज्यादा होता है, ये फर्क है।
रहना और जीना, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। हिंदी में खैर इतना नहीं बोलते, बट फ्रेंच में ये है। तो वीव रिस्ड व्हेन यू आर देयर कनेक्टेड विद इमोशंस, एंड habites व्हेन यू आर जस्ट स्टेइंग देयर और लिविंग देयर विदाउट एनी इमोशनल कनेक्ट वाला। ओके, आगे हम देखते हैं पार। पार होता है बाय के द्वारा, किसी के द्वारा, राइट? सो इट्स अनदर वन, इल वोयाज par train, ये हमें बताता है हमारा मीन्स क्या है, किस साधन से हम ट्रैवल कर रहे हैं। सो इल वोयाज par train, ही ट्रैवल्स बाय ट्रेन। अगर हमें ये बोलना है it is made by me, how does someone say that? Adi, could you try? It is made by me, ये मैंने बनाया है। से हाँ, मेड थर्ड फॉर्म है, अभी आपने सीखा नहीं है। फे, वेरी गुड। Fair- एफ ए आई अजय ओ फिर फे, ये फेयर वर्ब सीखा था आपने, फेयर, एफ ए आई आर ई, फेयर, टू डू। उसका हाँ जी हाँ जी उसका थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म पे फिर ज्यादा मत जाइएगा, परेशान मत होइएगा, बिकॉज ये हमको पास्ट टेंस में सिखाऊंगा मैं आपको। तो फे, मेड, इट इज मेड पार मुआ, हुआ ये मेरे द्वारा बनाया गया। मैं इसको अलग कलर में हाईलाइट से करता हूँ ताकि फिर पर सिफे पार मुआ, मतलब मान लीजिए आदि ने कुछ बनाया एंड यू नो कोई पेंटिंग थी या कुछ भी क्रिएटिव काम था, और आदि से सिफे पार मुआ, सिफे पार मुआ, तो दूसरे ने हैरानी से सिफे पार तुआ, इट इज मेड बाय यू, वी सिफे पार मुआ, राइट? ओके आई थॉट ये FAIS से बना है, एफ ए वो आई जो आप एस, फेक हाँ फे आप काम करते हो, आप पूछते हो क्वेश्चन में ना फे से फे सफे ना FAI नहीं, जब मैं पूछता हूँ ना सिफे, इज इट डन, ये वाला कह रहे हैं आप, हाँ जी वो यही होता है। कभी अच्छा यही आपको होता है नहीं, यही होता है बिल्कुल, आपने वो अच्छा पकड़ा। FAIS नहीं होता है FAIS मैं जब पूछता हूँ ना हो गया क्या सिफे, तो मैं ये तो पूछता हूँ हमेशा रविंदर, सिफे या सिफिनी। नफे पा क्या होता है फिर नफे पाओ जो नफे FAIS वो होता है FAIS नफे पा डोंट डू दिस हाँ, वो होता है नफेपा न, वो हम हमारे मित्र को कह रहे हैं मत कर, नफेपासा, नफेपासा, डोंट डू दिस, नफेपासा। तो ये जो फा है और ये जो फेथ है ये अलग हैं दोनों ना हाँ, मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो फे है ना, FAIT रविंदर, ये वाला और ये वाला, ये एक है, ये दोनों तो, और ये थर्ड फॉर्म है हमारे वर्ब फेयर के, करने के, फेयर के राइट? ओके फेयर वर्ब के थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म पे ज्यादा मत जाइएगा, ये हम पास्ट टेंस में सीखेंगे। बस इतना सा ध्यान रखिए, डन के रूप में, इट इज मेड, इट इज डन बाय मी, इट इज मेड बाय मी, इज इट डन, ओके इज इट मेड, इज इट डन, तो वो आ गया। और ये जो है फेयर वर्ब का इंपेरेटिव फॉर्म है, जो यहाँ पे हमने देखा था ना, इंपेरेटिव ऑन्त्र वाला था, फ्रेंड को बोल रहे थे ओके ऑन्त्र, उसी प्रकार से हम फेयर वर्ब के अंदर मित्र को बोलते हैं फे, मत कर, नफे मत पासा, करो मत अच्छा कर। एक ही फैमिली से हैं बट हाँ वो उनकी वो हाँ, एक ही डेजिग्नेशन फैमिली, चेंज उसके करती है यूजेजेस अलग है। हाँ, ये थर्ड फॉर्म था और ये हमारा इंपेरेटिव फॉर्म है। ओके ठीक है और आपको अगर और ध्यान देना हो तो आप देखिएगा, वो ब्लू कलर की मैंने आपको फोटोज भेजे थे खूब सारे, जिसमें हमने हाँ जी verbs के, हाँ जी उसमें आप फेयर पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये इंपेरेटिव वाली कैटेगरी में मिलेगा, और ये पास्ट टेंस वाली कैटेगरी में दिखेगा आपको, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वी विल आल्सो वर्क ऑन दैट, डोंट वरी। ओके, सो तो दैट यहाँ वाज पे हम ये पार्क वैसे भी यूज करते हैं जब कैसे कुछ लेने जाते हैं पार्क कार्ड अपार, हाँ बिल्कुल, बस इतना पारकास्ट, या बस यही समझ como, आते हैं पार्क कार्ड हाँ बिल्कुल, पारकास्ट, आप कैसे पे मैडम कमो बुझा ले पाइए, पारकास्ट, कार्ड के द्वारा, वेरी गुड, पारकास्ट, तो ये वही तो हो गया, वेरी गुड, पार, थ्रू, बाय, परफेक्ट, राइट? सो चलिए, ग्रेट। और एक लास्ट है वेयर, व्हिच मींस टुवर्ड्स, वेयर मींस टुवर्ड्स, के दिशा में, टुवर्ड्स। सो il marche vers la porte, what does that mean? Il marche vers la porte, Weber, il marche vers la porte. He works, or he walks towards the gate. Exit. Yeah, towards the door, towards the gate. Perfect. Il marche vers. Vers is towards, right? Vers. ये जो vers है ये हम समय के केस में भी यूज कर सकते हैं आदि। जैसे किसी ने पूछा tu me téléphones, d'accord? Ok, je te téléphone vers 2 heures. Vers 2 heures. Around. Around. लगभग. Right? Not exactly, लेकिन लगभग. Around. तो towards के साथ ये around के सेंस में भी आता है जब हम समय की बात करते हैं. So can you call me around 2 o'clock? Okay, je vais te parler vers around 2 heures. Ça va? C'est clair? Okay. This is a little homework I would like to give you people. This is to fill the exercises with the blanks of
prepositions. So she goes to the university, à l'université, right? We are talking dash our professor. So with our professor or to our professor both can make sense. इसको आप ट्राई कीजिएगा अपने स्तर पे, एंड आई पुट द आंसर्स एज वेल फॉर यू सो दैट यू कैन वैलिडेट फॉर योरसेल्फ. सो थोड़ा सा प्रैक्टिस एक्टिविटी है. एक छोटा सा टॉपिक है अगला, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. जब हमें कोई इंस्ट्रक्शन देना हो वैभव, लेकिन हमें ये नहीं बोलना हो कि तुम ऐसा करो या आप ऐसा कीजिए, तब हम क्या करते हैं? आदि हम यूज करते हैं इल्फो. इल्फो इल्फो क्या होता है रविंद्र? एक सिंपल सा एक फॉर्मुलेशन है जिसमें हम उसको, ओके नो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, यू कैन लीव. सो तो इल्फ नेसेसरी जैसा. yeah, so it is necessary, right? So you can carry on with the video, right? So ilfo मतलब होता है यह जरूरी है, यह आवश्यक है. इसके बाद आपको क्या करना है? सीधे वर्ब को लगाना है आदि. So it is necessary to study, पढ़ना जरूरी है. How do you say that आदि? इल्फो कौन एचयूडी. Okay, अब आपने क्या बोला? It is necessary that we study, ये बोला आपने. आपको we भी नहीं बोलना, आपको सिंपल बोलना है आदि. It is necessary to study, पढ़ना. इल्फो एचयूडी. Very good. Ilfo étudier. एक और है ना इल्फ नेसेसरी. Non, il fait nécessaire, c'est nécessaire d'étudier. अच्छा C'est हाँ. nécessaire d'étudier. आप ये भी बोल सकते हैं, c'est nécessaire d'étudier. पढ़ना आवश्यक है. C'est nécessaire d'étudier, right? ये अलग फॉर्मुलेशन है वैभव आदि, right? वो तो जो सिंपल है वो इल्फो लगाइए प्लस वर्ब लगाइए जो भी है, right? ओके. कोई बोलता नहीं है क्लास में तो मैं कहूँगा बोलना बहुत जरूरी है. तो मैं कैसे बोलूंगा वैभव? जनरल. मैं नहीं कह रहा तुम्हें बोलना जरूरी, मैं नहीं कह रहा तू दुआ पढ़ ले. इन जनरल बोलता हूँ बोलना आवश्यक है. हाउ डू आई से दैट वैभव? इल्फो पार्ले. इल्फो पार्ले. पार्ले. बोलना पड़ेगा. इल्फो पार्ले. परफेक्ट. या यू आर सेइंग समथिंग वैभव? सॉरी सर. नो नो, यू हैव अ क्वेश्चन, बताइए. जैसे इल्फो एतु दिए लिखते हैं हम, लेकिन इसमें देतु दिए लिखा होगा. से नेसेसर देतु दिए. सो हाँ, ये डिफरेंस है क्योंकि इल्फो के बाद सीधा वर्ब लगाते हैं, लेकिन से नेसेसर के बाद दो लगता है. ये अलग कंस्ट्रक्शन है. मतलब हम पढ़ा ये रहते सिंस आदि न्यू दिस, सो आई ब्रॉट दिस इनटू पिक्चर, बट इट इज सेम एज दिस वन. सेम है ये, राइट? इल्फो के बाद द वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है. इल्फो के बाद डायरेक्टली सीधे वर्ब वर्ब आएगा. लगाना. या मतलब आपने कहा अपनी टीम को काम करना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी. आप ये नहीं कह रहे कि होता क्या है जब आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, लोग अदरवाइज ले लें, तो आप जनरल स्टेटमेंट्स पास करते हैं. पढ़ना जरूरी है. इल्फो एचूजिए, काम करना जरूरी है. इल्फो travailler. इल्फो venir à l'heure, समय पे आना जरूरी है. इल्फो venir à l'heure. अब एक दो को नहीं डांटा आपने, सबको इन जनरल कहा. इल्फो venir à l'heure, समय पे आना जरूरी है. दैट वे. सो इल्फो, राइट? तो ये भी एक तरीका है जो आदि ने कहा, से nécessaire de, राइट? तो ये भी आप बोल सकते हैं. उदाहरण के लिए, il faut manger pour vivre. What does that mean, Adi? It is necessary to eat. For living. अच्छा. है ना? मतलब जीने के लिए खाना जरूरी है. So it is necessary to eat to live. तो ये आपने पूरी बात बता दी. बस इतना सा नहीं कहा आपने कि यह जरूरी है. इसमें देखिए ये तीन कंस्ट्रक्शन निकलते हैं इसमें इंग्लिश में. तरुण, it is necessary to, one must, one should. राइट? लेकिन इसमें किसी का नाम नहीं ले रहे हम, ना पिन पॉइंट कर रहे हैं, बिकॉज पीपल माइट टेक इट अदरवाइज. और सफल होने के लिए पढ़ना आवश्यक है. व्हाट इज दैट इन फ्रेंच, वैभव? इल्फो एतुदिए pour réussir. 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 Perfect. Il faut étudier pour réussir. So सफल होने के लिए पढ़ना आवश्यक है. Perfect. And the next one is il ne faut pas. It's necessary not to. यानी हम अब नेगेटिव कह रहे हैं. ये जरूरी नहीं है, राइट? या ये मना है. आपने बच्चों का यहाँ पे कोई लाइब्रेरी में बैठा था, तो आपने कहा बातें यहाँ बातें करना अलाउड नहीं है. It is necessary not to talk. Il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler. तो आपने अब न पा लगा दिया. आपने क्या किया तरुण? आपने न और पा लगाया वर्ब के आजू बाजू में. Il ne faut pas.
il ne faut pas हो जाएगा it's not necessary to, one must not, one should not, right? आप इसमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, ये मना है, तो ये वाला ट्राई कीजिए। तरुण पढ़िए इसको, मीनिंग बताइए। या तरुण, you'll have to read this. Il ne faut pas cour dans les coulisses. ओके, सो ये ठीक था, il ne faut pas सही पढ़ा आपने, dans les भी सही पढ़ा, इसको पढ़िए courir, courir, Courir. और इसको पढ़िए courir. couloir, Couloir. couloir. What does that mean? Il ne faut pas courir dans les couloirs. Yeah, one must. Okay. One must run in the house. या सो couloir होता है कॉरिडोर, जो कॉरिडोर होता है पैसेज, उसको बोलते हैं couloir. सो गलियारे में भागना सही नहीं है, वन मस्ट नॉट। मान लीजिए छोटे बच्चे आए हुए हैं, वो भाग रहे हैं, तो उनको आप मना करें, il ne faut pas courir dans les couloirs, right? पैसेज में भागना is not correct, so one should not, one must not run in the passage, in the corridor. Okay, ये वाला ट्राई करते हैं, आदि पढ़िए इसको। Il ne faut pas oublier de dire merci. What does that mean? One should not forget to say thank you. Exactly, one shouldn't forget to say thank you. So il ne faut pas oublier, और क्या नहीं भूलना चाहिए वैभव? De dire merci, to say thank you. अब आप कह सकते हो पर ये टू तो ये द है, तो ये टू से थैंक यू में ये द क्यों आया, आ क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने तो आ सीखा है टू के लिए, ये तो ऑफ या फ्रॉम सीखा था अभी तक। ऐसा कोई प्रश्न आ रहा है वैभव आपके दिमाग में? नहीं, अभी तो नहीं आया था, लेकिन आपने पकड़ लिया। हाँ, मैंने डलवा दिया, मैंने कहा डालते हैं दिमाग में ताकि और आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो द रीजन इज, अभी जो हमने प्रेपोजिशन सीखे थे वो बिल्कुल अच्छे थे, उसमें आ का मतलब टू था या एट था या इन था, और द का मतलब ऑफ या फ्रॉम था। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि ये इट इज वन शुड नॉट फॉरगेट to say thank you. The reason is this becomes two because in English you have to put to, but in French why then the, why not a? So the reason is फ्रेंच में oublier क्रिया के बाद हमेशा द लगता है किसी अन्य क्रिया के लिए। सो अब आपका धीरे धीरे वेलकम हो रहा है A2 लेवल में। इसका मतलब ये है कि हम जब कभी भी oublier वर्ब काम में लेंगे कि कोई चीज भूल जाना, क्या भूल गए करने के लिए, तो वो जो चीज है तरुण, oublier द के बाद आप वो वर्ब लगाएंगे। दीर होता है to say, to say. सो अगर मैं खाना भूल गया, बड़ा अजीब सा है, कोई भूलता नहीं खाना खाना, लेकिन मैं खाना भूल गया, तो मैं बोलूंगा लेकिन Oublier past tense में the पढ़ाया नहीं month. आपको। मैं हमेशा खाना भूल जाता हूँ ना, मैं हमेशा खाना भूल जाता हूँ, तो प्रेजेंट टेंस, j'oublie de manger, j'oublie de manger, j'oublie de manger, I forget to eat, मैं भूल जाता हूँ खाना। कोई चीज है जो मेरे को सुबह खा के जानी चाहिए, मेरे को दवाई है, आई डोंट नो व्हाटएवर इट इज, आई डोंट, वो तो खैर प्रॉन्ट रहेगा टू टेक, बट कोई चीज मुझे खानी होती है, बट आई ऑलवेज फॉरगेट टू ईट इट। मे बी कोई लास्ट में कोई कुछ माउथ फ्रेशनर है, व्हाटएवर इट इज, सो j'oublie de manger, आई फॉरगेट टू ईट, राइट? So why do we say the, Adi? Because oublier verb takes the after it for any other verb to follow. ये चीज हमें ध्यान रखनी। और इंग्लिश में Oublier अब verb takes, आपको या sorry, क्या बोला आपने? Oublier verb takes. oublier verb always takes de, the preposition after it when it is followed by another verb, वैभव। क्या काम करना भूल गए हम, उस काम के लिए खाना भूल गए या लिखना भूल गए या बोलना भूल गए या रखना भूल गए, जो भी हम चीज भूल गए, उस वर्ब Okay. के लिए हमें द यूज करना पड़ेगा oublier के साथ, राइट? Okay, thank So you. ये, but in English you would say I forget every day to eat, तो वहां पे टू आएगा इंग्लिश में, बट फ्रेंच में द आएगा। सो ये कहानी oublier की है, इसलिए वो द लेता है। ये धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा तरुण कौन कौन से वर्ब्स क्या लेते हैं, बट दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स, राइट? ओके, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वन मस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर ईच डे, il faut boire beaucoup d'eau chaque jour। देख लीजिए आराम से, il faut boire, it is necessary to drink beaucoup d'eau, खूब सारा पानी, chaque jour, every day। अगला, il faut respecter les règles de l'école, it is necessary to respect the school rules, it is necessary to respect the school rules, स्कूल के जो रूल्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट,
नेगेटिव में देख लेते हैं। परीक्षा के दौरान बात करना मना है, परीक्षा के दौरान बात नहीं करनी है। सो il ne faut pas parler, il ne faut pas parler pendant होता है during, during l'examen, il ne faut pas parler pendant l'examen। इन्विजिलेटर घूम रहा है क्लास में, बच्चों को उसने बात करते देखा, उसने कहा हेलो एक्सक्यूज moi, il ne faut pas parler pendant l'examen, il ne faut pas parler pendant l'examen, right? That's what the examiner would say। और कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है तो उसने कहा excusez-moi, il ne faut pas déranger les autres, il ne faut pas déranger les autres, it is necessary not to disturb the others, right? One should not disturb the others, पड़ोसियों को परेशान मत कीजिए, अड़ोसी पड़ोसियों को, the other people, right? C'est clair? Ça va? वैभव? So, आदि? merci. ओके, एक एक्टिविटी दी है मैंने आपको, इल्फो लगाएंगे जरूरी है या इल्नफोपा की जरूरी नहीं है? होमवर्क करना चाहिए खेलने से पहले या नहीं करना चाहिए, वो अब आपका अपना विचार है, और उसके हिसाब से आपको इल्फो या इल्नफोपा लगाना है। यू हैव टू ट्रांसलेट ऑल द सेंटेंसेस फॉर मी इन इंग्लिश आफ्टरवर्ड्स। ये मैंने आपको आंसर्स भी दिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एक अगला मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा एक टॉपिक है। ये टॉपिक है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या होता है? हाउ डू वी से वैभव, आई एम वॉचिंग टेलीविजन, मैं टीवी देख रहा हूँ। Je regarde télévision. ओके, वंस अगेन, Je regarde La television. परफेक्ट, आई एम watching TV. And what about I watch TV? same होगा। Je regarde la télévision. Yeah, the same thing, isn't it? Vaibhav, the same thing? Yeah. I am watching TV बोले तरुण, या I watch TV बोले, दोनों के लिए ये बोलते हैं आदि, je regarde la télé, ये तो आप ओके हैं सब लोग। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है तरुण, एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आप टेंस बता रहे हैं, इसका मतलब है राइट नाउ। The only sense will change here is the fact that you have to say Tarun, right now I am watching television। तो right now वाले सेंस में किसी ने बोला नहीं नहीं पर अभी क्या कर रहे हो, अरे इसी क्षण मैं टीवी देख रहा हूँ, अभी 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 टीवी देख रहा हूँ मैं, अभी स्ट्रेस देके जब बोलना है तो हमें क्या करना होता है वैभव? हमें यूज करना पड़ता है être en train de। être is to be, en train de in the process of, in the process of, किसी चीज को करने की प्रक्रिया में होना, राइट? ये बहुत स्पेसिफिक टेंस है, इस क्षण, राइट नाउ आई एम डूइंग दिस थिंग। सो क्या करना होगा आपको? être वर्ब काम में लेना है, उसका कॉन्जुगेशन करना है, je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont, और उसके बाद je suis en train de, tu es en train de, il est en train de, nous sommes en train de, vous êtes en train de, ils sont en train de, elles sont en train de, I am in the प्रक्रिया of, I am in the process of, मैं क्या करने की प्रक्रिया में हूँ? जो भी आप करने की प्रक्रिया में है आदि, वो वर्ब, वो एक्शन आपको पीछे पूरा पूरा लगाना है। किसने पूछा? Qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis en train de manger. What does that mean, Adi? Je suis en train de manger. I am eating. I am on the. I am. I'm eating right now. I am eating right now. मतलब आप इसको ऐसे ना बोल के I am in the process of eating की बजाय आप बड़े आसानी से बोल सकते हैं वैभव, right now I am eating। right now लगाना है, तो right now मतलब आप बिल्कुल उसको उस क्षण की बात बता रहे हैं, right now I am eating। so अगर कोई पूछना चाहे कि आप ये भी कह सकते हैं पर मैं ये क्यों नहीं बोल रहा I mange, sorry, je mange, so je mange will be like I eat or I'm eating, but if someone wants to really stress on the fact right now I'm eating, je suis en train de manger, अभी कैसे तुम्हारी हेल्प करूं, je suis en train de manger, so right now I'm eating, right? je suis en train de, so ये en train de is present progressive, which means that you are doing that action at that point of time। आप पूरा verb लगाएंगे। So it's yeah, so the meaning is we are eating. I'm eating yes, in the train. not exactly in the train,
बट ट्रेन यहाँ पे वो प्रोसेस की बात बता रही है तरुण, आप उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में है, en train de होता है उस प्रोसेस में. It's not the train, No, the vehicle you're talking about. नहीं त्रॉन द अब एक बार थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको एक बार. हाँ, sure. वो ट्रेन को भी ट्रेन ही बोलते हैं सर एक्चुअली, हाँ, राइट? जो exactly, ट्रेन हाँ. होता है तो आप वो त्रान अगर बोलते हैं, त्रान. या सो यू डोंट स्टैंड द यूएसबी ऑन ट्रेन. ओ गॉड, यहाँ इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स वो वाला बन सकता है जो आपको याद है तरुण, वैभव आदि हम लोगों ने कहा था कि इतने सारे शब्द सेम होते हैं फ्रेंच में कि मैं अभी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ एक सैंडविच खाने की प्रक्रिया में हूँ. ओ गॉड, इट विल बी हॉरिबल. सो आपको je suis en train, पहले तो आप कहोगे मैं ट्रेन में हूँ. je suis en train de manger un sandwich. je suis en train, मैं ट्रेन के डब्बे में आ गया और अब उसमें मैं किस प्रक्रिया में हूँ, en train de manger un sandwich. तो वो उस तरीके से बोला जाएगा, राइट तरुण? आपने ये जो जस्ट सुई या तू ए या इल ए ये आपने इस वर्ब को आपने वो कंजुगेट किया ना ये या वेरी गुड. एत्र. हाँ, एत्र को हमने बदल दिया और en train को मेंटेन किया और जो भी वर्ब हमने किया उसको पूरा लगा दिया यहाँ पे. तो ये सुई एस ये एत्र का कॉन्जुगेशन है. एग्जैक्टली, ये आपको याद है ना, शुरू में हमने सीखा था तरुण, ये एत्र का कॉन्जुगेट है. je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont, en train de, and then whatever the verb is. अब प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? मैंने फोन किया वैभव आपको, मैंने कहा qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? मैं लिखता हूँ, आप मेरे को मीनिंग बताइएगा. Qu'est-ce que tu es Yeah, Vaibhav, what does that question mean? Qu'est-ce que tu es en train de faire? What are you doing right now? What are you doing right now? Absolutely. क्या कर रहे हो अभी? What are you doing right now? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Yeah. Right? मान लीजिए ये एकदम सर से- मतलब Yeah. लिख के इंग्लिश हो जाता है, आपका लिखा तो more or less we are able to translate, लेकिन अगर आप बोलो कि what are you doing right now, उसका तुम फ्रेंच करो तो वो डिफिकल्ट है. True. No, but ये सेंटेंस फॉर्मेशन आगे पीछे हो जाएगा अगर मतलब किसके तू मतलब कि फेयर लास्ट में है तो मतलब व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ है तो हम ये लिख देंगे किसके किसके तू फेयर ए लाइक तू ए त्रॉन दे. yeah, I got it. I got it. No, I got. See, that's why you have to slowly translate from the translation वाला sense to the real usage वाला tense. इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए. You know, get a chance to speak as much as possible. So, qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh, je suis en train de manger. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, je suis en train de regarder la télé. So, the more you speak, the better you become, right? That's how it is. अभी जब हम अंग्रेजी से या अपनी रीजनल लैंग्वेजेस से भी शिफ्ट कर गए दूसरी भाषाओं पे, तो हमारा वो हिंदी के अंदर आप देखिए कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलग होता है, फ्रेंच की तरह चलता है. उसमें पहले बोलते हैं जैसे मैं कल वैभव से मिला, बट इंग्लिश में था yesterday I met वैभव. तो आप देखिए वैभव एकदम लास्ट में चला जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में तो मैं कल वैभव से मिला तो पहले आ जाता है. तो ब्रेन ने कितना उसको प्रोसेस कर लिया कि हिंदी हो या आपकी लोकल लैंग्वेज हो या अंग्रेजी हो तो हम मैनेज कर लेते हैं. अब वैसे ही फ्रेंच में आपको धीरे धीरे मैनेज करना है, सो हो जाएगा काम. वैसे सर हिंदी और फ्रेंच ज्यादा वो मिलती हैं. फॉर्मेशन में मिलता है, हाँ, राइट? काफी सारी चीजें हैं. आप अगर हिंदी स्पीकर हैं, आपको हिंदी अच्छी समझ में आती है, तो बहुत चीजों पे आप कंफर्टेबल फील करेंगे. और B1 B2 पे एक टॉपिक होता है सब्जेक्टिव, जो इवन फ्रेंच लोग भी उससे स्ट्रगल करते हैं. उनको बोलना तो आता है, फ्रेंच है तो, लेकिन उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है इंग्लिश के माध्यम से. वो हिंदी से इतना स्मूथली जाता है बिकॉज हिंदी में भी सब्जेक्टिव पाया जाता है. सो एवरी टाइम आई मूव थ्रू हिंदी टू एक्सप्लेन व्हाट द सब्जेक्टिव इज एंड हाउ टू यूज इट. सो वी नो वी विल ट्राई टू डू दैट एज वेल. ओके, Ça va, c'est merci. clair? Vaibhav, c'est bon? Oui, oui, Tarun, ça merci. va? Oui, très bien. Oui, Adi? Okay, so I'll quickly show you some of the examples. So देखिए, right now I am reading a book. चलिए आप ट्राई कीजिए. तरुण पढ़िए इसको फ्रेंच में. Je suis en train de lire un livre. Very good. Je suis en train de lire un livre. Un livre. Right? So right now I'm reading a book. I'm reading a book right now.
राइट? आदि आप ट्राई करो सेकंड वाला. Ils sont en train de préparer le dîner. What does that mean? They are preparing dinner right now. Perfect. What about this one, Vaibhav? Third one, पढ़िए French में. Nous sommes en train de discuter the plan de vacances. Okay, यहाँ पे थोड़ा सा U को आप U पढ़िए. Discuter, discuter. Discuter. Very good. Discuter des plans de vacances. What does that mean? We are in the process of, we are discussing the plan for vacation. Yeah, We are we are in discussing the the process vacation. of. Yeah. अब right now बोलिए या in the process बोलिए, जो भी आपको ठीक लगता है वो बोलिए, but keep your English correct, right? वो important है. और अंत में you are working on your project right now. Tu es en train de travailler sur ton projet. मैंने पूछा, तुम क्या इस वक्त अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? Tu es en train de travailler sur ton projet? Oui, oui, je suis en train de travailler sur mon projet. So that means right now. ठीक है, ये कुछ टिप्स हैं, ये आपको समझ में आ गई हैं. कुछ ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप करिएगा. तो nous sommes en train de regarder un film, je suis en train de travailler sur mon devoir, ये आप ट्राई कीजिएगा. इसके मैंने आंसर्स भी आपको दिए हैं. नेक्स्ट एक छोटा सा एक टॉपिक है, उसके साथ हम खत्म करते हैं आज के सेशन को. और कुछ होमवर्क देता हूँ मैं आपको. कुछ कॉमन एडवर्ब्स हैं जो फ्रीक्वेंसी दर्शाते हैं. ऑलवेज, समटाइम्स, रेयरली, 4-5 हैं, मैं आपको बताता हूँ. ऑलवेज को हम बोलते हैं फ्रेंच में toujours, हमेशा. toujours, toujours, राइट? इस शब्द को याद रखिएगा. उसके बाद हमारे पास कुछ और शब्द हैं, जैसे हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट often, कभी कभार, मतलब लार्जली. ऑफन होता है 75%. 100% toujours 70-75% जब आपकी फ्रीक्वेंसी होती है तो हम बोलते हैं souvent, souvent. उदाहरण के लिए, elle lit souvent avant de dormir. She reads often before going to sleep. या बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले वो प्रायः पढ़ती है, वो लार्जली पढ़ती है, वो ऑफन पढ़ती है. पारफुआ, quelquefois, याद है आपको? ये शब्द हमने सीखा था. और एक और हमने सिखाया था इसमें des fois, des fois. तो कभी कभार, कभी कभार, कभी कभार. पारफुआ, des fois, quelquefois is sometimes. और नेक्स्ट हो जाएंगे de temps en temps, from time to time. फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं है, कभी कभार है. rarement, rarely. और अंत में jamais मतलब कभी नहीं. मैं कभी नहीं जाता सर्दियों में समुद्र के किनारे. Je ne vais jamais à la plage en hiver. I never go to the beach in winter. और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इस प्रकार की है, once in a week, une fois par semaine, une fois par mois, तो once in a week और once in a month. She goes to the swimming pool once in a week. Elle va à la piscine une fois par semaine. और अंत में 2 बार साल में 2 बार, 2 fois par an. तो ils voyagent 2 fois par an. They travel twice a year. तो सर, या ये पार मतलब पर हो गया, राइट? ये अब इसका एक और मीनिंग हो गया, राइट? पार का पार, हाँ, ट्वाइस, एग्जैक्टली. मतलब पर मंथ, मतलब वन टाइम वेरी पर गुड. मंथ और वीक. पार मतलब पर भी होता है, यू आर राइट. पर है ना, वंस अ वीक, वन टाइम पर वीक, मतलब वंस अ वीक भी बोल देते हैं इंग्लिश में, या वन टाइम पर वीक बोल सकते हैं. बिल्कुल ठीक है. या ओके, छोटा सा होमवर्क ये रहेगा कि आप ये रिमेनिंग जो पोर्शन है इसको पढ़िएगा, विच इज अगेन विद द हेल्प ऑफ समटाइम्स, रेयरली और ऑलवेज. और फिर मैंने आंसर्स भी दिए इसमें. एक लास्ट एक नेगेशन का एक टॉपिक है, वो कैसे बनता है वो हम कल की क्लास में सीखेंगे. हाउ डू यू मेक नेगेटिव्स. सो इसको आप पढ़िएगा. और साथ में मैंने आपको कुछ और पीडीएफ भेजे हैं, आज आप देखिएगा. उन पीडीएफ को एक बार रन थ्रू करने का ट्राई कीजिएगा जितना भी टाइम हो आपका. कल हम उन पीडीएफ को देखेंगे जिनमें हमने थोड़े आपको और ग्रामर कॉन्सेप्ट सिखाए हैं A1 लेवल के. सवा, वैभव, तरुण, आदि. Très bien. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Non. Non, pas de questions. Voilà. Ok, très bien. Alors je vous souhaite bonne journée et je vous dis à demain. Merci beaucoup. À demain, merci. À demain. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci.